ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज में सबसे पहले बताया था एंड यूजर. So on the basis of end user there are three type of basically consumer based कुछ सर्विसेज होती हैं जो हम इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं. बिजनेस टू बिजनेस, when the one business is basically giving the service to the other, it means कि एक business service provider है and the another business is the consumer. Third one is in इंडस्ट्रियल एंड यूजर. इंडस्ट्रियल एंड यूजर का मतलब है कि जो इंडस्ट्री जो है वो आपसे सर्विस ले रही है, किसी बिजनेस से सर्विस ले रही है, किसी कंपनी से सर्विस ले रही है. So next one is the degree of tangibility, that is a product service continuum. So in that situation, in the product service continuum, we understand that what is the tangibility spectrum. We understand that what is the basically three type of qualities: the search qualities, experience quality, and credence quality. The search quality in which we are easily able to evaluate the goods before purchasing that. For example, like clothes, jewelry, and the houses. So we are not purchasing it. We don't need to purchase it for evaluating, but we can evaluate it before purchasing. So that is the search quality. Second one is experience quality. Once you will take that service, then after that, according to your expectation, if you will get that service back, when you will perceive the same service, then that will give you good experience. But when whatever you are expecting and you are getting or receiving less service than that, then that experience is not so good. So experience service qualities like vacation, haircut, child care, all these comes under the experience qualities. Credence quality, it means that these type of services are totally based on the trust recommendation and like for example the diagnosis, like legal, medical, so which is very much hard to evaluate. So in the case of the product service continuum, very hard to evaluate is your credence quality and very easy to evaluate is search quality, and experience quality is somehow between these 2 points, between the search quality and the credence quality. तो प्रोडक्ट सर्विस कॉन्टिनम कर लिया हमने. उसके बाद फिर टैंजिबिलिटी के बेसिस पर और भी कुछ पॉइंट्स किया था हमने, लाइक हाईली टैंजिबल सर्विसेज, सेकंड सर्विस लिंक्ड टू द टैंजिबल गुड्स, एंड द थर्ड वन वाज द हाईली इंटैंजिबल सर्विस. So in the first point, if we are talking about the highly tangible service, it means that in this situation, जो आपको सर्विस मिल रहा है, सर्विस जो प्रोवाइड किया जा रहा है, that is because of the tangible things are present with the service provider. For example, if the person is a driver, but if that person don't have car, so he or she is not able to provide the service to the other. So like cab services and all these things are dependent on the tangible goods for the service and for the commuting, right? The second one is the service linked to the tangible good. It means like when the service is provided for the goods which you purchase. Okay, and example me, if I am purchasing an AC, air conditioner, so the warranty, guarantee, installation service, repair service, whatever is there, that is because of the purchasing of that AC. जब हमने AC खरीदा, जिस प्रोडक्ट के ऊपर जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, that is service linked to the tangible goods. यानी tangible goods के लिए service installation cannot be done in air, but it can be done with the complex product like the AC, for the fridge and all these things. ठीक है, the fridge के लिए तो installation की जरूरत नहीं है. Highly intangible service, yes, but for purifier, for air conditioner, the installation is required. Highly intangible services, like those services which is not based on any of the tangible goods, but it can be provided without tangible goods as well, like the teaching, like physiotherapy, all these things comes under the highly tangible, intangible services. So I guess these two type of classification is clear to all of you. These two type of classification is clear to all of you, class? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Everyone turn on your camera. Every student turn on your camera. Okay. Next one is people-based services, which we already discussed. That is high contact and low contact. In the case when the service taker, जहाँ पर service जो है without service provider, without person possible ही नहीं है, so that is a high contact services. In the case where the service can be provided with or without the people, that is a low contact services, right?
तो हाई कॉन्टैक्ट में जैसे जहां पर सर्विस प्रोवाइडर है जिसका डिग्री कॉन्टैक्ट का काफी ज्यादा हाई है, इस टाइप की जो सर्विसेज है ये पूरा पीपल बेस्ड है, यानी लोगों पर ही ये सर्विस जो है वो बेस्ड है. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोवाइडर हु केटर टू द customers and meet there repeatedly over a long period of time. So what can be the examples of this, like teaching, counseling and surgery? It cannot be possible without interaction. Either you are interacting via machine, either you are interacting with the digital medium, but the surgery is not at all possible with the digital medium, right? But the teaching and counseling can be possible, but interaction is required. Like I am sitting here and I am interacting with you all. So this is something which comes under the high contact. The second point is like low contact. In this situation, there are some type of service which is characterized by very low contact and which the service provider don't need to interact a lot with the customers. Very little interaction or zero interaction is also going to give you the service. There is no requirement, कोई जरूरत नहीं है. और ये इसलिए पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द मशीनरीज विच इज अवेलेबल, क्योंकि मशीन्स है अवेलेबल. एग्जाम्पल में जैसे आपका ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मशीन्स हो गया, वेइंग मशीन्स हो गया, बहुत सारे मेट्रो स्टेशन पे वेइंग मशीन है विच फॉर विच यू जस्ट नीड टू pay the amount and after that you just need to stand, you will get all the result of your weighing and BMI and everything. तो ये जो होता है ये इक्विपमेंट बेस्ड सर्विसेज की वजह से ये जो लो कॉन्टैक्ट पॉसिबल हो पाया है. मतलब अभी भी ऐसे भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए नर्सेज आर अवेलेबल, कंपाउंडर्स आर अवेलेबल, बट बिकॉज ऑफ द मशीनरीज दे आर बेसिकली वर्किंग एज एन अल्टरनेट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर. तो दिस इज नोन एज द लो कॉन्टैक्ट, जहाँ पर बहुत मिनिमम या फिर जीरो कॉन्टैक्ट के बिना भी आपको सर्विस मिल जाती है. एटीएम इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल. ब्लड प्रेशर मशीन हो गया, weighing machines हो गया, vending machines हो गया, all these are the example of this. Clear हो गया? समझ में आ गया? Everyone? Yes. This point is clear? Okay, just wait for a minute. Is on the basis of expertise. So the यहाँ पर जो सर्विस क्लासिफाई हो रहा है on the basis of expert. आप कितने एक्सपर्ट हो और उस बेसिस पर you are doing the transaction. ठीक है? जो ट्रांजेक्शन हो रहा है सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस दे रहा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टीज. ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर आप एक्सपर्टीज में आ जाएंगे. एक आ जाएगा आपका हाईली प्रोफेशनल सर्विसेज. फर्स्ट वन इज हाईली प्रोफेशनल सर्विसेज एंड द सेकंड वन इज नॉन प्रोफेशनल. फर्स्ट वन इज हाईली प्रोफेशनल सर्विसेज एंड सेकंड वन इज द नॉन प्रोफेशनल. हाईली professional services and second one is non-professional. तो highly professional services में क्या आ जाएगा, जहां पर जो person है who is basically authorized for giving some type of services. कुछ जो ऐसे लोग हैं जो authorized है कुछ type की services को provide करने के लिए, जैसे कि doctors जो हैं they are basically able to do the treatment because that person is authorized. वो person क्या है, वो authorized है. कैसे authorized है? Because he or she did the education in that background. मतलब उस बैकग्राउंड में उनकी एजुकेशन है, पढ़ाई है और साथ साथ में उनको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से डिग्री भी प्रोवाइडेड है. तो वो सर्टिफाइड पर्सन है, इसीलिए वो कुछ प्रोफेशनल जो काम है वो कर सकते हैं. ठीक है, तो हाईली प्रोफेशनल जो सर्विसेज होंगे अंडर दिस सर्विस फर्म कुड बी क्लासिफाइड एज अ हाईली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर आपका जो पर्सन होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिंक होगा. ठीक है, और जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं, जैसे कुछ कंपनीज भी ले सकते हो आप एग्जांपल में प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, और कुछ प्रोफेशनल्स को भी ले सकते हो जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स. दीज ऑल आर द प्रोफेशनल्स बिकॉज दे हैव डिग्री फॉर डूइंग और गिविंग सच काइंड ऑफ सर्विस. समझ में आया ये पॉइंट? दिस पॉइंट इज क्लियर? This point is clear to everyone? Yes, okay, ma'am. so next one is that is non-professional. See, I am not talking about the skill. If the person is working as an electrician, that person is skilled, but it is not necessary that person have such kind of degree or professional certificate that he or she can work in a very good or big organized organization or organized company. So what I am just telling about the non-professionals, वो वैसी सर्विसेज होती हैं जहां पर आपके कोई प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत नहीं है उन सर्विसेज को देने के लिए.
स्किल होता है, बिल्कुल होता है, नॉलेज के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। एक प्लम्बर आप टैप को भी सही नहीं कर सकता अगर उसे नॉलेज नहीं है तो, लेकिन उस नॉलेज को उसने कैसे एक्वायर किया इसका कोई बेसिस जरूरत नहीं है। जैसे उसने कोर्स किया या उसने अपने रिलेटिव से सीख लिया या अपने फादर से सीख लिया या घर के किसी मेंबर से सीख लिया, ये कोई डिग्री दिखाने की उसको जरूरत नहीं है। बट इन द केस जब आप एक हॉस्पिटल ओपन करते हैं तो उसके लिए आपको डिग्री की जरूरत है, क्योंकि यू आर गोइंग टू ट्रीट द पीपल, है ना। लेकिन यहाँ पर जो ये सारी चीजें हैं, जैसे कोई पर्सन कॉबलर है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कोई काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मतलब अनऑर्गेनाइज या फिर बोल सकते हैं जो लेबर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, so they are knowledgeable, they know how to work, लेकिन for that no professional degree certifications are required, so they comes under the non-professional but still they have skill and knowledge. In the second situation, professionals या फिर highly professional services where the degree certified practitioners degree certificates association से वो person related होना चाहिए. So this point is clear. This point is clear to everyone. Yes, ma'am. Okay. तुम लोग इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? मुझे आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की। मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. हाँ तो yes or no, एक बच्चा कह रहा है yes मैम। आधे सोए हो कि जगे हो? जागे हुए। Orientation toward profit. Orientation toward profit. This is the fifth classification. Orientation toward profit. Fifth classification. So here it is basically divided into two parts. The first one is commercially oriented. The second one is non-for-profit organization. Commercially oriented. Second one is not-for-profit organization, NPO. Okay, what is the meaning of first one, commercially oriented? तो ऐसे भी कुछ सर्विस फॉर्म्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जिनका मेन रीजन है प्रॉफिट अर्न करना. Either if you are taking any kind of service, you have to pay the big amount or a amount that is not a free of cost. Like whatever service you are taking, either the person is going to the parlor or they are going to the institute. The money you need to pay for that. ठीक है? And कुछ प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं, दे आर टोटली कॉमर्शियल बेस्ड. ठीक है? जैसे आप एग्जांपल में कोई सा भी ले लो, जैसे आप आईसीआईसीआई बैंक ले लो, अपोलो हॉस्पिटल्स ले लो, फिर मेदांता ले लो, ये जितनी भी आपके हॉस्पिटल्स हो गए या बैंक हो गया, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ये सारे के सारे प्रॉफिट बेस्ड हैं. प्रॉफिट के बेस के लिए ही सर्विस दे रहे हैं. समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? So they are basically commercially oriented service provider. So commercially oriented service provider है. For profit, for benefit, they are working. ठीक है? The second one is that is NPO, non for profit. So this type of organization, जो ये service organizations होते हैं, इनका profit earn करना main motive कभी भी नहीं होता है. They are basically working for the social welfare, like municipal park हो गया आपका, या फिर पब्लिक लाइब्रेरीज हो गया आपका. ठीक है? फिर तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन कैरी करते हैं सर्विस, वो सोसाइटल कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है. ठीक है? और ये बेटरमेंट जानते हैं कि सोसाइटी को कैसे बेटर करें, हम कैसे उनको प्रॉपर सर्विस दें, और इसको हम कहेंगे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. लाइक इफ यू आर गोइंग टू द पार्क फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज नॉन कॉमर्शियल टाइप ऑफ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड. तो ज्यादातर जो एनपीओ के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो गवर्नमेंट ही ओन्ड होते हैं. ठीक है? तो उनका प्रॉफिट अर्न करना मेन बेनिफिट कभी भी नहीं होता है. I guess this point is clear to everyone that what are the various classifications of the services. Clear हो गया? Yes, ma'am. समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Okay. Next point is next topic complete करते हैं अब. Just wait for a minute. I have your. So if we are talking about the marketing mix, what is the meaning of that? It is basically a tactic or tool है ये जो कोई company use करता है for what? For basically satisfying the customer needs. And for basically जो marketing mix है ये एक तरीके से strategy है जो companies आपकी use करती हैं. तो अगर normal marketing management के concept में समझे तो there are 4 P's: product, price, place and promotion. But in services, because it is a services are totally people based, तो यहाँ पर 3 P's आपके और बढ़ गए हैं. And these 3 P's are
people, process, and physical evidence. So these are the 7 P's. Overall, there are 7 P's in the services. ठीक है, ये एक तरीके से आपका इंटरनल एलिमेंट है मार्केट का, मार्केटिंग प्रोग्राम का, ये जो P's होते हैं. अब यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोडक्ट के बारे में. व्हाट इज द बेसिकली प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट एक ओवरऑल, अगर हम सर्विस की बात करें तो कोई टैंजिबल प्रोडक्ट तो अवेलेबल यहाँ होता नहीं है. तो प्रोडक्ट एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, एक ऑब्जेक्ट है विच प्रोवाइड सम वैल्यू टू द कस्टमर. डेफिनेटली if you are talking about the goods, if I am talking about the charger even, so the charger have some utility. तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई यूटिलिटी हो और उस यूटिलिटी से कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो, यूटिलाइजेशन हो, मतलब ठीक है, उसका कोई वैल्यू हो. अब यहाँ पर 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, मतलब इन गुड्स और सर्विस. प्रोडक्ट में 2 चीजें होती हैं, गुड्स और सर्विस. तो कभी भी क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट, तो हमेशा रिमेंबर, याद रखिएगा कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आपके प्रोडक्ट का पार्ट है. प्रोडक्ट जो है ये आपका मैन्युफैक्चर किया जाता है. गुड्स को हम मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्री में, लेकिन सर्विसेज कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, but it can be provided at the same time. When we did that characteristics of the services, we understand about that how service is basically provided. So in fact, अगर हम बोले तो customers are not buying goods or services, they are basically buying the specific benefit. वो कोई goods और services नहीं खरीद रहे हैं, वो अपना benefit फायदा खरीद रहे हैं, अपनी जरूरत को खरीद रहे हैं. ठीक है. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है सर्विस में, सर्विस प्रोडक्ट में, इज व्हाट बेनिफिट्स एंड सेटिस्फैक्शन द कस्टमर इज सीकिंग फ्रॉम द सर्विस. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सर्विस अगर कोई कस्टमर ले रहा है तो उसका क्या रीजन है, क्यों स्पेसिफिकली वो सर्विस लेना चाह रहा है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एक रेस्टोरेंट के मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये बात समझिए, एक रेस्टोरेंट के मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, तो रेस्टोरेंट सिंपली मतलब है विच प्रोवाइड्स द फूड. But the customer coming to the restaurant may be seeking an outing and atmosphere different from the home relaxation, entertainment, or even the status. तो अगर एक रेस्टोरेंट मैनेजर से आप पूछेगा कि ये भाई पर्सन को आपके यहाँ पर जो कस्टमर्स आते हैं वो क्यों आते हैं, तो मैनेजर कहेगा दे आर बेसिकली कमिंग फॉर द फूड, खाने के लिए आते हैं. लेकिन एक पर्सन से अगर आप पूछेगा तो हर पर्सन के लिए रीजन वैरी कर जाएगा. कुछ लोग फूड के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग रिलैक्स होने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग घर के खाने से बोर होकर के वहां खाने जा रहे हैं, कुछ लोग के पास टाइम है, घर नहीं जा पा रहे हैं. तो मल्टीपल रीजन द पीपल हैव फॉर गोइंग टू द रेस्टोरेंट. ठीक है. द मार्केटिंग जो सर्विसेज का करते हैं हम कैन बी सक्सेस ओनली if there is a match between the service product and the customer viewpoint and the supplier viewpoint. इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है आप लोगों का सर्विस में, दैट इज सर्विस गैप. तो ये भी इसी चीज से कहीं ना कहीं रिलेटेड है. तो मैं आपको बता दूं कि जो आप सर्विस की जब मार्केटिंग करते हैं तो इस चीज का खासा ध्यान रखना है कि आपका सर्विस प्रोडक्ट तभी सक्सेसफुल है मार्केट में अगर कस्टमर को क्या चाहिए और सप्लायर का क्या व्यू पॉइंट है वो दोनों मैच करे. ठीक है. यानी कस्टमर किस चीज के लिए चाह रहा है सर्विस लेना और सप्लायर क्या सोच रहा है सर्विस देने के लिए, ये दोनों का मैच होना बहुत जरूरी है. एग्जाम्पल में मैं बताती हूँ कि एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल में है और वो चाहता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे ऊपर केयर और कंसर्न हो, लेकिन जो हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है, नर्सेस और जो स्टाफ हैं, वो सोचते हैं कि इसको अच्छा खाना देते हैं. तो यहाँ पर ये सक्सेसफुल सर्विस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो कस्टमर का डिमांड है या उसका जो व्यू पॉइंट है और जो आपके सप्लायर यानी जो सर्विस देने वाले लोगों का जो व्यू पॉइंट है, दैट इज टोटली वैरी, एक दूसरे से अलग है. तो जब भी आप सर्विस देते हैं तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत जरूरी है. और यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं आपके प्रोडक्ट में. व्हाट आर दोज लेवल्स? द फर्स्ट वन इज कस्टमर बेनिफिट कॉन्सेप्ट, सेकेंड वन इज सर्विस कॉन्सेप्ट, सर्विस ऑफर इज द थर्ड पॉइंट एंड द फोर्थ वन इज सर्विस ऑफ. इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक एक करके. यहाँ तक समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस? एवरीवन, this point is clear? Yes, ma'am. Okay, just wait for a minute. Okay. So we were discussing about the
analyze how we can analyze the service at the following level. What are the levels of services? The first one is customer benefit concept. So if we are talking about customer benefit concept, sorry, जो service product है which is offered in the market has its origin in the benefits which the customer are seeking. But the problem is that customer themselves may not be very clear idea what they are seeking. तो कई बार क्या होता है कि यहाँ अगर हम कस्टमर बेनिफिट कॉन्सेप्ट से ये पॉइंट को समझे, सर्विस के प्रोडक्ट के लेवल को समझे, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सर्विस प्रोडक्ट जो ऑफर किया जा रहा है मार्केट में, ठीक है, उसका कुछ बेनिफिट है जो कस्टमर चाहता है, यानी कस्टमर इज सीकिंग फॉर, कस्टमर इज लुकिंग फॉर, बट जो प्रॉब्लम है ना, वो कस्टमर को खुद ही को आइडिया नहीं कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस आई रिक्वायर, दैट पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट इट, ठीक है, उसको क्लियर आइडिया नहीं है कि उसको क्या सर्विस की जरूरत है, क्या चाहिए, ठीक है, और मे बी इट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इट, यानी कि या तो उसको समझ आ रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि मुझे सर्विस क्या सर्विस की जरूरत है। तो यहाँ पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो बेनिफिट शाउट जो होता है दैट मे बी ऑल्सो चेंज, और दिस चेंज इन कस्टमर मे कम अबाउट द सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री और अनहैप्पी एक्सपीरियंस इन द यूटिलाइजिंग द service. So इसको मैं समझाऊंगी. To increase sophistication in service use and consumption and changing expectation. All these make the issue of marketing a service product more complex. So in short, we understand from this point कि कई बार क्या होता है कि जो सर्विस प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, ऑफर किया जा रहा है, कस्टमर के प्रॉब्लम के साथ वो मैच कर रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन वांट टू टेक द एडमिशन इन द MBA, so that person knows that कि मुझे MBA में एडमिशन लेना है, ठीक है, लेकिन कहाँ लेना है वही उसको क्लियर नहीं है, दैट किस जगह ले, कौन से कॉलेज में ले, दैट इज नॉट क्लियर टू दैट पर्सन. तो ऐसे केस में क्या होता है, या फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी बातों को कि मुझे ना मार्केटिंग से MBA करना है, मुझे HR से MBA करना है, कुछ प्रॉपर क्लियर खुद कस्टमर को ही नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विस दे वांट एंड व्हिच इंस्टीट्यूट ही और शी वांट टू स्टडी, ठीक है. तो ये जो चीज होती है ना, जो आपके थिंकिंग लेवल होती है सर्विस को लेकर, दैट विल बी वैरी और चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. एक बार आप बहुत कंफ्यूज हो, एक बार आप क्लियर हो जाओगे कि नहीं, आई जस्ट वांट टू टेक द एडमिशन इन IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. So basically this type of problem is arise when the customer benefit concept is not, even customer benefit is not clear to the customer only, even the services are present, but because of the confusion you are not able to match it with your requirement, ठीक है, आप अपने रिक्वायरमेंट के साथ उसको मैच नहीं कर पा रहे हो. ये कई बार इसलिए होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, जब आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है अबाउट द वेरियस कॉलेजेस इन द मार्केट. क्लियर हो गया, समझ में आया दैट व्हाट दिस पॉइंट इज स्पीकिंग अबाउट, क्लियर हो गया. और अगर आपको सेटिस्फैक्शन, जब आपने ऐसे अनअवेयरनेस में जब कोई एडमिशन ले लिया, तो फिर हो सकता है मे बी यू विल बी अनसेटिस्फाइड और यू आर नॉट हैप्पी विद दैट टाइप ऑफ कॉलेज. तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी अराइज. समझ में आया, क्लियर हो गया everyone? This point is clear. Customer Yes, benefit ma'am. concept. Second Yes, one is ma'am. service concept. अब यहाँ पर सर्विस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, सर्विस कॉन्सेप्ट यूजिंग द कस्टमर बेनिफिट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब एक बार हमने कस्टमर बेनिफिट को समझा फर्स्ट पॉइंट में, जो सर्विस कॉन्सेप्ट है वो डिफाइन करता है स्पेसिफिक बेनिफिट विच द सर्विस ऑफर. यानी कि अब जो कस्टमर बेनिफिट कॉन्सेप्ट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर, दैट व्हाट काइंड ऑफ सर्विस दे आर लुकिंग फॉर, they are confused, they are not confused, that is a customer benefit concept. कस्टमर अपने बेनिफिट से जब उसको मैच कर रहा था, जब कस्टमर अपने बेनिफिट से उसको मैच कर रहा था, ठीक है. अब यहाँ पर सर्विस कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एनालाइज करेगा कि किस टाइप की सर्विस जो है वो कस्टमर ढूंढ रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेनिफिट विच द सर्विस इज ऑफर्ड. लाइक एक बार कस्टमर कंफ्यूज, कस्टमर को समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर उस कंफ्यूजन को दूर करने का काम आता है कि लाइक इफ यू आर अ कॉलेज देन यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दैट व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड इन द कॉलेज विद द डिग्री. लाइक यू आर गोइंग टू गिव द इंटरनेशनल ट्रिप करवाएंगे MBA में, या फिर हम रिसर्च पेपर्स लिखवाएंगे, या फिर हम आपको एडिशनल लाइब्रेरी का पास देंगे विच इज बेसिकली एक्सेसिबल टिल 9 PM. So this kind of benefits you are now going to suggest the
person or the consumer. ठीक है, यहाँ पर जो सर्विस है आप क्या ऑफर कर रहे हैं, किस टाइप के सर्विस प्रोवाइडर आप हैं, इट इज बेसिकली डिफाइंड हियर. ठीक है, so this is a service concept. The service provider is going to match the services with the requirement of the customer, and they are analyzing the problem of customer, and they will tell about the additional benefits or the benefits which is provided through your company, colleges, जो भी है. समझ में आ गया बात? मतलब मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया आपको. क्लियर हो गया? दिस सर्विस कॉन्सेप्ट. कस्टमर कॉन्सेप्ट में पॉइंट क्या था कि लाइक कस्टमर इज लुकिंग फॉर द सर्विस. Services concept में the service provider is looking for the customer to providing the better service, and they will try to match the expectation of the customer in this concept. Clear हुआ? This point is clear, everyone? This point is clear, class? Yes, ma'am. Class, this point is clear, yes or no? Yes, ma'am. Next one is service offer. So after defining the business in which we are operating, the next step जो होगा, that is about the basic service concept. In this situation, like यहाँ पर आप क्या कैसे सर्विस को ऑफर कर रहे हो, like which platform you are offering the service. Like example में, if you are taking the admission in the college, now they are basically telling you what is the procedure of getting that service. Like you have to fill the form first, you have to give the examination, ठीक है, entrance examination. So this is how, what is the procedure to taking that service? It is basically mentioned in this service offer. समझ में आया point? ये समझ में आ गया कि like in the customer benefit concept, what kind of service customers are looking for. In the service concept, what kind of service we are providing. Service offer, how you will get that service. ठीक है, किस तरीके से आपको वो सर्विस मिलेगा. Like if I just want to take the admission in IIM, definitely I have to give the CAT MAT examination. After that I have to clear the GD. After that I have to clear the interview, and then after that I'll get the admission, right? So what is the procedure of getting or grabbing the service? It will be mentioned in the service offer. समझ में आया? If a person, जैसे इसको एक और एग्जाम्पल से समझो कि if a person is, एक लड़की है जो बहुत अच्छा गाना गाती है एग्जाम्पल के लिए, so that comes in the customer benefit concept, that she sings very well, but she is very confused that in which platform she need to basically sing, how she can enhance her growth in career, मतलब how she enhance in her career, कैसे growth होगा उसका career का, that comes under the customer benefit concept. The service concept will tell you about the various reality shows, कि कितने सारे reality shows present हैं, and the service offer where that how you are going to participate in that reality shows, that will come under the service offers. अब clear हो गया? अब clear हो रहा है सबको? Everyone clear हुआ ये point? कुछ बोलो, yes or no? Yes, ma'am. Yes. बोल क्यों नहीं रहे हो? पूरे क्लास में इतने बच्चे बैठे हैं लेकिन no one speaking. Next one is service form. In what form should the service will made available? Service offer कि किस तरीके से आपको सर्विस मिलेगा. सर्विस फॉर्म में भी यही चीज है, बट इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया देखो यहाँ पर चेंज हो गया कि डिसीजन कैसे लिया जाएगा. लाइक सर्विस ऑफर में फॉर्म्स भर दिया, एग्जामिनेशन दे दिया. अब सर्विस फॉर्म में जब आपने एग्जामिनेशन दे दिया, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? इट विल डिसाइड दैट यू विल गेट द सर्विस और नॉट, you will get that opportunity or not. Next one is कि once the services, अब अगर आपने entrance examination clear कर लिया, देखो इसको बहुत easy हो कि मैं examination का point लेके चल रही थी. तो customer benefit concept में कि like if you want to take the admission in the MBA, which type of colleges is better for me for the placement purpose, and everything you are going to analyze, right? Service concept, you have to offer, you have to talk about that what kind of services your colleges are providing. In service offer, how you can take the service, what is the concept of the operation, it is next step, like you have to fill the form and everything will be done. In the service form, you will give the examination. Examination का point इसमें ले लो, and if you will clear the examination,
then you will get the service, and that point the getting the service will be done in the 5th step, and that is service delivery system. In this step, once you will selected in the entrance examination, now you have to pay the fee for the college, and you will take the classes after that, classes onwards. समझ में आया? This concept is clear. ये पांचों समझ में आ गया क्या क्या ये पॉइंट कह रहा है? पहला पॉइंट है दैट इज कस्टमर बेनिफिट कॉन्सेप्ट, सेकंड इज सर्विस कॉन्सेप्ट, थर्ड वन इज सर्विस ऑफर, फोर्थ वन इज सर्विस फॉर्म्स, एंड फिफ्थ वन इज सर्विस डिलीवरी सिस्टम। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम लोग का पनिशमेंट है कि 500 बार लिख कर लेकर आना मंडे ट्यूसडे के क्लास में यस मैम बोलना नहीं आता। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब तो बहुत जल्दी यस मैम किया, पनिशमेंट काम कर गया। बोल रहे थे मैम। हाँ ठीक है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। थोड़ा सा मैं प्राइस बता देती हूँ। अच्छा, प्राइस कितने लोग को पता है कि प्राइसिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइसिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइसिंग? मैम कॉस्ट प्लस डोंट मार्जिन। वरी, इस 4 पीस को अभी और भी कराना है, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको 4 पीस करा रही हूँ। एक एक प्रोडक्ट को पकड़ के उसका भी बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट क्या है? प्राइस। बताइए प्राइस क्या है? And cost of product. Cost of the product or the amount which we are taking from the customer in lieu of giving some product, right? Like if I am purchasing a water bottle, I have to pay 50 rupees, 20 rupees for purchasing that product. So that is a price, cost of that product, selling cost. ठीक है? तो जो pricing system होता है, that is totally dependent upon that what kind of product you are providing, what kind of cost we are going to set for the product. This process is done by the company. This is the only P through which we are getting the money for our company. This is the only P. But for product, we have to invest the money. For the distribution, we have to invest the money. For promotion, we have to invest the money. For people, it means for employees, we have to invest the money. But this is the only P from which we are getting the money back, right? So, अगर हम बात करें प्राइसिंग की सर्विस में, तो देयर आर सम टाइप ऑफ जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज टोटली चेंज। ये थोड़ा चेंज हो जाता है। वी कैन नॉट आस्क लाइक एमआरपी। हम एमआरपी गुड्स के लिए पूछते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बट इट इज नॉट विद द सर्विसेज। सर्विसेज में जो टर्म्स होते हैं प्राइस के, वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट अगर कोई कराती है एजेंसी, तो उसके लिए हम कमीशन वर्ड यूज करते हैं, दैट कमीशन विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है? ब्रोकरेज सर्विस कोई प्रोवाइड करे तो उसके लिए कमीशन वर्ड यूज करते हैं, नॉट प्राइस। कंसल्टेंसी कोई देता है तो उसके लिए फी। अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो फी बोला जाता है ना, प्राइस बोलते हैं। प्राइस दो बच्चे बोलते हैं ना कॉलेज वाले, दे आर स्पीकिंग अबाउट फी, राइट? अगर ट्यूशन की, बेसिकली एजुकेशन में ट्यूशन फी हो गया। फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आपको कोई दे रहा है तो आप उस पर इंटरेस्ट, चार्ज या कमीशन के नाम पे आप बोलोगे। गेस्ट स्पीकर है तो उसके ऑनरेरियम कुछ वर्ड अलग है। तो प्राइस का वर्ड कितना अलग है इन द केस ऑफ द सर्विस, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस। इंश्योरेंस है तो उसके लिए प्रीमियम है। तो आपका जो प्राइसिंग है जो आपके सर्विस में, यहाँ पर कुछ जो टाइप्स हैं वो मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। पहला है डिफरेंशियल और फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। ये सारे प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। डिफरेंशियल और फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, डिस्काउंट प्राइसिंग, डाइवर्शनरी प्राइसिंग, गारंटेड प्राइसिंग, ये टाइप ऑफ प्राइसिंग है जो सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले आता है डिफरेंशियल और फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। तो डिफरेंशियल और फ्लेक्सिबल जो प्राइसिंग होता है, ये आपके डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट कॉस्ट या डिफरेंट प्राइस जब लिया जाता है कंपनी के द्वारा या वैरी करता है प्राइस, तो उसको कहते हैं डिफरेंशियल और फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। अब जैसे कई बार क्या होता है कि लॉयर्स के पास हम गए, ठीक है, मतलब ऐसा जाना नहीं है, बस ऐसे मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल में कि लॉयर के पास गए। अब लॉयर ने बोला कि मेरी फी है 1 लाख, तो मैंने बोला नहीं 1 लाख तो नहीं दे सकते, 50,000 दे सकते हैं। So my affordability is only 50K. If I will ask for that, I can only able to pay 50K. So in that situation, इस situation में
जो पर्सन है अगर वो चाहेगा तो वो पैसे को रिड्यूस कम कर सकता है, ठीक है। तो कस्टमर एबिलिटी टू पे द डिफरेंशियल इन द प्रोफेशनल सर्विसेज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट लॉयर, तो प्राइस कई बार वैरी करता है। तो ये तो पीपल बेस्ड जो सर्विस है, जो हाई पीपल बेस्ड सर्विस है, जैसे लॉयर और टीचिंग, ये सब, जैसे कई जगह पे कोचिंग सेंटर्स में भी कॉस्ट वगैरह कम कर देते हैं, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, जैसे जैसे घर के आसपास पढ़ा रहे हैं तो ऐसे भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइस फिक्स नहीं है। सेकेंड केस क्या होता है कि अगर एक ही टाइप की जो सर्विस है जब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे दी जा रही है तो उसका कॉस्ट वैरी कर रहा है। जैसे आप एयरलाइंस को देख लो कि अगर आप कल का टिकट ले रहे हो ना, तो कल का टिकट बहुत महंगा पड़ेगा एयरलाइंस का। अगर आप 2 महीने बाद का ले रहे हो तो इट विल बी वैरी, because the service which you are going to take that will be in future and it is taking a long time. सर्विस में काफी समय है, आपको लेना है जो सर्विस है उसमें काफी समय है, तुरंत इमरजेंसी सर्विस नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में द कॉस्ट विल बी लो व्हेन यू आर टेकिंग द टिकट, एयर टिकट फॉर 2 महीने बाद का। बट इफ यू आर टेकिंग द टिकट फॉर टुमारो, इन दैट सिचुएशन द केस विल बी टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो डिफरेंशियल और फ्लेक्सिबल प्राइसिंग का मतलब होता है व्हेन द प्राइस इज नॉट फिक्स्ड एंड एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम द कॉस्ट ऑफ द सेम सर्विस विल बी वैरी। सेम सर्विस का जो कॉस्ट वैरी करेगा, लाइक जैसे कि अगर 2 लोग हैं और दोनों इकोनॉमी का टिकट ले रहे हैं, तो मैंने मान लीजिए एग्जाम्पल में कल का टिकट आई पेड 15,000 और किसी पर्सन ने पहले ले रखा होगा 2 महीने पहले से और उसने 3,000 रुपये पे किया होगा, तो हम दोनों की सर्विस में तो कोई डिफरेंस नहीं है। एयर होस्टेस तो उसके बुलाने पर भी आएगी, मेरे बुलाने पर भी आएगी, तो सर्विस इज नॉट वैरिंग, सर्विस वैरी नहीं कर रहा है, लेकिन टाइम ऑफ टेकिंग द सर्विस इज वैरी, दैट इज बिकॉज द कॉस्ट इज वैरी। समझ में आया? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब जैसे Yes, ये ma'am. चीज बात मोबाइल फोन से ये आपके इसके साथ भी होता है, क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एडमिशन में देख लो, ये भी एक रीजन है कि कई बार कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो आपके टाइम ऑफ एडमिशन के बेसिस पर फी ले लेते हैं। जैसे अगर आपने 3 महीने पहले प्री बुक करा लिया तो आपका फी कम हो गया, आपने एकदम एट द टाइम एडमिशन लिया तो आपका फी ज्यादा हो गया, तो दैट कैन बी पॉसिबल। इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल और डिफरेंशियल प्राइसिंग। और ये थिएटर में भी होता है ना, थिएटर में भी होता है कई बार ये चीज कि जब आप सीट, जैसे आपने प्रेफर किया और पहले ले लिया सीट, तो वो आपको सीट का कॉस्ट हाई। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा ना लोकेशन भी मैटर करता है आपके प्राइस को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। जैसे अगर आप थिएटर में जाते हो और सबसे लास्ट की सीट लेते हो, ठीक है, या बालकनी सीट या कुछ ऐसे लेते हो, तो वैरी कर जाता है उसका कॉस्ट बिकॉज ऑफ द फेवरेबल लोकेशन, क्योंकि वहां से हम ज्यादा कंफर्टेबली ये मूवी देख सकते हैं, तो उसका कॉस्ट कई बार वैरी करता है, हाई रहता है। लेकिन मूवी तो सब लोग सेम देख रहे होते हैं, चाहे वो नीचे के रो के देख रहे हो, चाहे वो सबसे ऊपर के रो के देख रहे हो, लेकिन बिकॉज ऑफ द लोकेशन, because of the timing, because of the favorable situation, the cost of the same service will be varied. Clear? चलिए, next one is discount pricing. Next point is discount pricing. So I am just thinking that in the next class we are going to cover the discount pricing and diversionary pricing. I am just going to take the attendance. किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am.